العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علیہ فی یومی الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ پیارا اور محترم اسلام، یقیناً جنت کو دیکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ تو حدیث پاک میں آیا کہ جنت ایسی چیز ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خطرہ گزرا کہ جنت کیسی ہے۔ لیکن درود پاک کی برکت اندازہ فرمائیے کہ درود پاک پڑھنے والا مرنے سے پہلے ہی جنت میں جو اس کو ٹھکانہ ملنے والا ہے، جو اس کو جگہ ملنے والی ہے، اس جگہ کو دیکھ لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان شریعت کورس ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم عقائد کے متعلق کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور عقائد میں آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق سنیں گے۔ ان میں سے ایک تو یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، دوسرا یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا کیسا، تیسرا یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، چوتھا یہ سنیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو عاشق کہہ سکتے ہیں، اور ایک یہ بھی سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو رام کہہ سکتے ہیں، اور آخر میں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں۔ پیارا اور محترم اسلام، ایک مسلمان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے ذہن میں آئے کہ یار اللہ تعالیٰ ایسا ہو یا ایسا ہوگا، تو ترنت ہمیں خیال کرنا ہے کہ یہ چیز کہیں عیب تو نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ذہن میں آیا یا ہم نے کسی سے سنا اللہ میاں، یعنی اللہ کو میاں کہنا، اب ترنت ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ بولا گیا ہے، تو کیا یہ میاں کا معنی صحیح ہے؟ اگر ہمارا یہ ذہن بن گیا تو یقیناً ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست ہو جائے گا، پھر غلط عقیدے ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا کہ یار جو بات میں اللہ کے بارے میں کہنے لگا ہوں یا کہنے والا ہوں یہ درست ہے، صحیح ہے، کہیں عیب تو نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں جاتے ہیں اور کوئی ہمیں کہے کہ یہ کام کر لو، تو
तो तुरंत हम सोचते हैं यार फ़ायदा होगा इसमें या मेरा नुकसान होगा। अगर नुकसान होता है तो नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते, अगर फ़ायदा होता है तो कर लेते हैं। इसी तरह आपके सामने खाना रखा जाए और कहा जाए खा लीजिए, लेकिन उसमें नुकसान वाली चीज़ भी हो तो आप अच्छी वाली चीज़ें खाएंगे, नुकसान वाली छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि भाई नुकसान थोड़ी उठाना है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हम अपनी जान को बचाने के लिए अच्छी चीज़ें इख्तियार करते हैं, अपने मफाद के लिए अच्छी चीज़ें इख्तियार करते हैं, तो क्या अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के लिए हम अच्छी चीज़ें इख्तियार नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। तो मुसलमान का अक़ीदा बुनियादी तौर पे ज़्यादा इल्म की गहराई में नहीं जाना, बस ये देख लेना है कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ या बोल रहा हूँ या लोग बोल रहे हैं वो अल्लाह ताला के लिए ऐब तो नहीं है। अगर ऐब हो तो उलमा से पूछ लें, जानने वालों से पूछ लें, और अगर ऐब ना हो तो फिर बोल सकते हैं। तो एक मुसलमान का अक़ीदा अल्लाह ताला के बारे में ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम उयूब से, तमाम ऐब से, तमाम नक्स से पाक है। नक्स माने होता है कमी, ऐब माने होता है कोई बुरी चीज़ होना। तो अल्लाह ताला के अंदर कोई बुरी चीज़ हो, अल्लाह ताला इससे भी पाक है। और अल्लाह ताला घटने से भी पाक है, कम होने से भी पाक है। नक्स माने कम होना, तो अल्लाह ताला घटने से भी पाक है और अल्लाह ताला ऐब से भी पाक है। तो फिर अल्लाह ताला है कौन? तो अल्लाह ताला हर कमाल और खूबी का मालिक है। अल्लाह ताला हर कमाल, जितने भी दुनिया में कमालात तसव्वुर किए जा सकते हैं, जितनी खूबियाँ तसव्वुर की जा सकती हैं, अच्छी चीज़ें तसव्वुर की जा सकती हैं, सोची जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, अल्लाह ताला उन तमाम खूबियों वाला है। बस हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए। प्यारा मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर ये अक़ीदा बैठ गया तो अब देखिए, बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो अल्लाह को मियाँ कहते हैं, और उनको कहा जाए कि साहब अल्लाह को मियाँ ना कहो, तो कहते हैं साहब लोग तो बोलते हैं, हमारे बाप दादा भी बोलते थे, हम तो बाप दादा से सुनते चले आए हैं। लेकिन आपने अभी क्या कहा कि हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला हर ऐब, हर नुकसान से पाक है, हर खूबी और हर अच्छी चीज़ का जामे है, यानी अल्लाह ताला हर अच्छी सिफत वाला है। अब देखिए, मियाँ अल्लाह को क्यों नहीं कह सकते? आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मियाँ के 3 माना आते हैं। मियाँ के 3 माना आते हैं। नंबर 1 शौहर, शौहर। नंबर 2 मर्द और औरत के दरमियान ज़िना, बदकारी करवाने वाला दलाल, कि इधर मर्द से भी पैसा ले कि मैं तुझे औरत दूंगा, और इधर औरत से भी पैसा ले कि मैं तुझे मर्द दूंगा, और दोनों से पैसा खा के दोनों के दरमियान ज़िना करवाए। तीसरा माना आता है आका। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शौहर होने से पाक, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई बीवी नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई औलाद नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, न उसको पैदा किया गया और न उसने किसी को पैदा किया। तो जब न उसने पैदा किया, न वो किसी से पैदा हुआ, तो न कोई उसके बीवी है, न कोई औरत है, न कोई बाप है, न कोई बेटा है। तो अल्लाह ताला शौहर होने से पाक। तो शौहर होना ये ऐब है अल्लाह ताला की ज़ात में। तो लिहाजा मियाँ का एक माना शौहर, इसलिए अल्लाह ताला को मियाँ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, दूसरा माना है दलाल, बदकारी का दलाल। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला बदकारी करवा सकता है? नहीं ना, अल्लाह इससे पाक है। तो लिहाजा अल्लाह ताला बदकारी के दलाल होने से पाक, इस वजह से अल्लाह को मियाँ नहीं कह सकते। तीसरा माना है आका, सरदार। इस माना के एतबार से अल्लाह को मियाँ कह सकते हैं, लेकिन जिस लफ्ज़ के 2 माना गलत हो, सिर्फ एक माना सही हो, तो ऐसा लफ्ज़ अल्लाह ताला के बारे में नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? इसकी मिसाल लीजिए।
ایک تھال میں کھانا رکھا ہے اور بیچ میں زہر ڈال دیا گیا، آپ سے کہا گیا صاحب اس کھانے کو کھا لیجئے، تو آپ کھائیں گے؟ حالانکہ کہا جائے صاحب زہر تو صرف بیچ میں ہے، کنارے کنارے کھا لیجئے، آپ کہیں گے کیا پتہ اصل کنارے تک پہنچ گیا ہو، مجھے مرنا تھوڑی ہے، میں ایک ٹائم بھوکا رہ لوں گا لیکن یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پیارے اسلام بھائیو، پورے کھانے میں زہر نہیں ہے، صرف بیچ میں رکھا ہوا ہے، تو ہم اس کھانے کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ 3 معنی میاں کے اور 2 معنی غلط، صرف ایک معنی صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے بول سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے، کہنا ہے تو اللہ پاک کہیے، اللہ تعالیٰ کہیے، اللہ عز و جل کہیے، اللہ الکریم کہیے، اللہ الرحیم کہیے، اور یہ الفاظ نہیں ملتے تو آپ اللہ کہہ دیجیے، بس ختم۔ اور اردو میں پاک تو ہر کوئی بول سکتا ہے، تو اللہ پاک بہت آسان ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ کیا لگانا چاہیے؟ پاک، اللہ پاک۔ دنیا کا لفظ اب نہیں بولیں گے، اگر کوئی بولتا ہوا سنائی بھی دے، دکھائی بھی دے، تو اس کو منع کیجیے گا، کیونکہ یہ پیارا اور محترم اسلام بھائیو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اور آپ ابھی نہیں روکیں گے تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا، صاحب ہم تو باپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں، تو اس کو بدلے گا کون؟ باپ دادا تو بیچارے قبر میں چلے گئے ہیں، وہ تو منع کرنے سے رہے، ان کو بھی علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو وہ بھی منع کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو سخی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سخی کا معنی ہے سخاوت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کتنی سخاوت کر رہا ہے کہ دیکھو کافر جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے دیتا ہے، دولت کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، تو اللہ تو سخاوت کرنے والا ہے، اللہ تو نیکوں کو بھی دیتا ہے، بروں کو بھی دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، اس کا انکار کرنے والوں کو بھی کھلاتا ہے، تو بھائی سخی کا معنی تو صحیح ہے نا، تو سخی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے؟ نہیں پیارے اسلام بھائیو، نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا قباحت لازم آتی ہے، کیا خرابی لازم آتی ہے، کیونکہ سخی یہ لفظ ہے عربی کا، اور عربی میں سخی کا معنی یہ ہے کہ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اب بتائیے ہمارا اللہ کھاتا ہے؟ نہیں نا، ہمارا اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، تو جب ہم سخی کہہ دیے اللہ کو کہ اللہ سخی ہے، تو پھر ہم نے کیا کہہ دیا معاذ اللہ کہ اللہ کھاتا ہے، کھلاتا بھی ہے کھاتا بھی ہے، تو یہ قباحت لازم آتی ہے کہ اللہ کھاتا ہے، کیونکہ کھانے کے لیے جسم چاہیے، پیٹ چاہیے، منہ چاہیے، دانت چاہیے، زبان چاہیے، ہاتھ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، تو پتہ چلا اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے، تو پھر کیا کہیں صاحب؟ اللہ تعالیٰ کی سخاوت تو اتنی ہے، تو بھائی سخی کے علاوہ ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے جو ہے جواد۔ کیا ہے؟ جواد۔ اللہ کو سخی نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو جواد کہنا چاہیے، کیونکہ جواد کا معنی ہے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ اب دیکھو صحیح ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے، مخلوق کو پلاتا ہے، اور تمام مخلوق کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ میں تمہیں روزی پہنچاؤں گا، میں تمہیں روزی پہنچاؤں گا۔ اور امیر علیہ سنت فیضان سنت بہت بہترین اور پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف 3 مخلوق ایسی ہے جو کل کے لیے کھانا بچا کر رکھتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوق میں سے ایک مخلوق بھی کل کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ نے جب رزق کا ذمہ لیا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا، تو جب ابھی کھلایا ہے تو کل پھر کھلائے گا۔ تو امیر سنت فرماتے ہیں نمبر 1 وہ مخلوق جو کل کے لیے کھانا جمع کر کے رکھتی ہے، تو وہ نمبر 1 حضرت انسان، ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں۔ دوسرا
चिंटी की चिंटी भी बचाकर कल के लिए जमा करती है। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 चिंटी, एक और है। तो ये 3 मखलूक जमा करती हैं। इनके अलावा कोई मखलूक भी कल के लिए खाना जमा नहीं करती है। अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि आपने मुर्गी को देखा होगा, अगर ना देखे हो तो आप देखिएगा, मुर्गी के सामने पानी रख दीजिएगा प्याले में, मुर्गी को जितनी प्यास होगी उतनी पिएगी, पीने के बाद पाँव मार के पानी उंडेल देगी, बहा देगी। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है कि जो अभी दिया है वो फिर देगा। और कैसे अल्लाह ताला देता है कि इंसान तमाम मखलूक से अफजल है, लेकिन मुर्गियों को पानी पेश करने, उनकी खिदमत करने पर किसको लगाया है? हजरत इंसान को। इसी तरह आप बकरी को देख लीजिए, बकरी के सामने भूसा रखिए, जितना खाना होगा खाएगी, जब खाना खाकर उसका पेट भर जाएगी तो पाँव मार मार के वो डलिया उलट देगी, क्योंकि उसको यकीन है कि अल्लाह ताला जो अभी दिया है वो फिर देगा। प्यारे साईं भी अल्लाह ताला को क्या कहना चाहिए? जव्वाद, सही नहीं कहना चाहिए। अच्छा, तीसरा है अल्लाह को आशिक कह सकते हैं? तो जवाब यह है कि अल्लाह को आशिक नहीं कह सकते, क्योंकि माने इश्क यानी इश्क का माना अल्लाह ताला की ज़ात में नहीं है। क्योंकि इश्क के लिए ये होता है कि जब किसी को किसी से प्यार होता है, इश्क होता है, तो पहले उसका दिल उसकी जानिब माइल होता है, और अल्लाह ताला दिल, जिस्म वगैरह से पाक है। और दूसरी बात यह है कि इश्क का लफ्ज़ ये इश्क मजाजी वाले इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से अब अल्लाह ताला के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला को फिर क्या कहेंगे? अल्लाह को मुहिब कहेंगे, अल्लाह को महबूब कहेंगे। जैसे अल्लाह मोहब्बत करने वाला है हमारे नबी से, तो अल्लाह मुहिब हुआ और हमारे नबी महबूब हुए। महबूब माने होता है मोहब्बत किया हुआ। अच्छा, हमारे नबी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमारे नबी हुए मुहिब और अल्लाह हुआ महबूब। तो अल्लाह मुहिब भी है, अल्लाह महबूब भी है। अब जैसे हम और आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, तो हम हुए मुहिब और अल्लाह हुआ महबूब। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो रिवायतों में आया कि अल्लाह खुद उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, तो फिर अल्लाह मुहिब हो जाता है और बंदा महबूब बन जाता है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और वो शख्स भी अल्लाह का महबूब है जो हलाल रोज़ी कमाता है। तो हमारे लिए तो खुशखबरी है। तो अल्लाह को आशिक और माशूक का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि क्या कहना चाहिए? या तो मुहिब कहेंगे या महबूब कहेंगे। अगला, अल्लाह को राम कह सकते हैं? गैर मुस्लिम अपने भगवान को राम कहते हैं, तो उनकी नकल करते हुए कोई मुसलमान अगर अल्लाह को राम कहे तो कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि राम का माना होता है रमा हुआ। रमा हुआ मतलब किसी चीज़ में घुस जाना, किसी चीज़ में समा जाने को रमा हुआ कहते हैं। और अल्लाह ताला किसी चीज़ में समाया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह किसी चीज़ में समाए तो अल्लाह छोटा हो जाएगा, वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। जैसे आप बोतल लें और बोतल में पानी भर दें, तो बोतल में पानी समा गया ना, अब क्या हुआ कि बोतल बड़ी है, पानी छोटा हो गया। अगर हम कहें कि अल्लाह राम है माज़अल्लाह, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह किसी न किसी चीज़ में रमा हुआ है, यानी दाखिल है, घुसा हुआ है, समाया हुआ है। जब ये कहेंगे तो फिर अल्लाह छोटा हो जाएगा, वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। हालांकि हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। आखिर में अल्लाह ताला के नाम कितने हैं? अल्लाह ताला के नाम 3000 हैं। मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल मन्नान तफसीर नईमी में लिखते हैं कि अल्लाह ताला के 3000 नाम हैं।
1000 नाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम जानते हैं, 1000 नाम फरिश्ते जानते हैं। कितने हो गए? 2000। 300 नाम तौरात में है, 300 नाम इंजील में है, 300 नाम ज़बूर में है। कितने हो गए? 2900। 99 नाम कुरान पाक में है। कितने हो गए? 2999। आप फरमाते हैं एक नाम ऐसा है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब आप फरमाते हैं कि अल्लाह के 3000 नाम, अगर बंदा अल्लाह के 3000 नाम अगर मालूम हो जाए उसको और ले तो काफ़ी वक्त चाहिए, और हर बंदे को 3000 नाम याद हो ज़रूरी भी नहीं। किसी उम्मत को अल्लाह ताला ने 3000 नाम नहीं बताए। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को 300 नाम दिए, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को 300 नाम दिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को 300 नाम दिए, और हमें कितने दिए? 99। लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान साहब बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि उनको 300 दिए, हमको 99 दिए। तो ये गम न करना कि तुम्हें कम दिए हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन 99 नामों में ऐसे 3 नाम दिए हैं कि उन 3 नामों के साथ अल्लाह का नाम लीजिए, 3000 नामों का सवाब मिलेगा। और फरमाते हैं वो है अल्लाह, दूसरा है रहमान, तीसरा है रहीम। और अल्लाह ताला ने इन तीनों नामों को बिस्मिल्लाह में जमा कर दिया। तो फरमाते हैं कि जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया, गोया कि उसने 3000 नामों के जरिए अल्लाह ताला का जिक्र कर लिया। और ये क्यों? क्योंकि हम बेहतरीन उम्मत है, तमाम उम्मत से अफजल है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये फजीलत अता फरमाई, सादत अता फरमाई। प्यारा मोहतरम इस्लाम, तो ये था आज हमारे अकायद का मौजू। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम मसाइल के मुतालिक सुनेंगे, यानी वज़ू के बारे में। तो वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, तो वज़ू के 4 फ़र्ज़ क्यों हुए, 5 क्यों नहीं हो गए, वज़ू में जो जो चीज़ें रखी गई हैं उनकी क्या हिकमत है, इंशाअल्लाह वो हिकमतें भी सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि पाबंदी से आप शिरकत भी करते रहें। इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी बहुत अच्छी बातें और प्यारी प्यारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और एक ऐलान ये समाप्त फरमाएँ कि 1 मुहर्रम से अहमद रज़ा मस्जिद में हमने 11 रोज़ा ज़िक्र शुहदाए करबला रखा है। तो ये 1 मुहर्रम यानी 18 जुलाई से ईशा की नमाज के बाद से लेकर पौना घंटे होगा, यानी 10:20 तक। तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते 9:35 हो जाता है, 5 मिनट की नात होगी, आधा घंटे का बयान होगा, और फिर दुआ और शिरीनी तकसीम करके इख्तिताम हो जाएगा। तो जिन इस्लामी भाइयों के पास वक्त हो, ये टावर वाली मस्जिद करीब ही में है, ईशा की नमाज़ वहीं अदा करें और ये इस प्रोग्राम में शिरकत करें। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमने इसमें तरतीब दिया है मौज़ूआत कि पहले दिन हम दीन इस्लाम के बारे में सुनेंगे कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्यों आया, दीन इस्लाम की क्या ज़रूरत पेश आई। दूसरे दिन सरकार की सीरत के बारे में सुनेंगे मुख्तसर कि सरकार कब पैदा हुए, सरकार ने कौन कौन से काम अंजाम दिए, ऐलान नबूवत का फरमाया, पहली हिजरी में कौन कौन से मामलात हुए, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 6ठी में, 11वीं में, ये सारा इंशाअल्लाह मुख्तसर हम सुनेंगे। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हुसैन, फिर शहादत इमाम हुसैन, और फिर 11वें दिन यज़ीद पलीद का अंजाम, और फिर उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। तो इसमें हिस्सा भी लीजिए, कैसे शिरकत करके भी, शीरीनी के ज़रिए भी। तो जो इस्लाम भाई सोच रहे हो कि यार शीरीनी मैं पेश करूँगा, तो आप नाम भी दिखा दें कि फुला दिन मेरे यहाँ से तो
शायद 100 के करीब इस्लामी भाई आएंगे, तो अगर एक एक लड्डू भी हम देंगे तो 10-12 किलो में हो जाएगा। तो 10-12 किलो लड्डू मेरी तरफ से, वो मेरी तरफ से, इस तरह 11 दिन अगर हम ले लेंगे जिम्मेदारी तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा और सवाब भी मिलेगा। मरहूमीन के लिए इशाले सवाब भी आपके हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बे मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रफ़अल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या अल्लाह हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, नेक परहेज़गार माँ बाप को फरमाबरदार बना। या अल्लाह हमें इस्लाम के फैज़ान से माला माल फरमा, शरीयत के फैज़ान से माला माल फरमा। या अल्लाह हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बना, दीनी दुनियावी बरकतों से माला माल फरमा। जो ज़मीनी आसमानी बलाएँ, वबाएँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें आने वाली हैं उनको दूर फरमा। राहतें, आफ़ियतें, सआदतें, बरकतें अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू कर बेबस महबूब की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि